शुमारे का आपसे पूछते हुए क्योंकि अगर हम ओवरऑल कश्मीर में देखें तो 12 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यानी प्राइवेट स्कूल्स में रजिस्टर्ड हैं एंड 14 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं। ये 8 घंटे का पीरियड उनका होता है पूरे दिन का स्कूल में एंड उसके बाद वो ट्यूशंस जाते हैं। ऐसा क्यों है? प्राइवेट कोचिंग ये हमारे लिए एसेंशियल है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ रेमिडियल सपोर्ट। जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा आपके पास ये नोटबुक नहीं है तो बोलते सर आप पढ़ाइए ना, योर जॉब इज जस्ट टू टीच। इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। यस, मी टू। राजबाग है, परेपोरा है, वहाँ एक वो ट्यूशंस का हब बन गया है। बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैव दिस कंसेप्शन कि वहाँ क्या करने जाएंगे, अच्छी दरबदरी गसान। If we look at the new education policy, it's a very important document and it contains everything. ये है चौक इन टॉक और मैं हूँ आपकी सिलसिले में आज हमने दावत दी है डॉक्टर खुर्शीद अहमद महाजन साहब को, जो कि महाजन सर के नाम से जाने जाते हैं। ये कोचिंग और ट्यूशंस में एक मशहूर और मारूफ नाम है और फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ में इन इस्लामिया कॉलेज। तो आज हम इनसे ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग के कल्चर के मुतालिक बात करेंगे। महाजन साहब, आपका इस शुमारे में खैर मकदम। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक। Before I just divulge anything on this, it's a very relevant topic. I owe my reverence to all of you that you have invited me to. Thank you. Your study. फिर मैं आगाज करूंगी इस शुमारे का आपसे पूछते हुए क्योंकि अगर हम ओवरऑल कश्मीर में देखें तो 12 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यानी प्राइवेट स्कूल्स में रजिस्टर्ड हैं एंड 14 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं। ये 8 घंटे का पीरियड उनका होता है पूरे दिन का स्कूल में एंड उसके बाद वो ट्यूशंस जाते हैं। ऐसा क्यों है कि स्टूडेंट्स जो पहले स्कूल जाते हैं उनको बाद में प्राइवेट ट्यूशंस भी के लिए भी ऑप्ट करना पड़ता है? ऐसा क्यों है? It's a very pertinent question. जो आपने बताया dual schooling. पहले तो उनको they have to attend their own regular school and then plus there is a coaching. Yes. इसके बारे में just I will tell you that there are certain factors which are responsible for this, for the need of private coaching in the present scenario of education. Okay. If we look at the landscape of government schools and private schools education in Kashmir, like in rest of India, it faces a lot of challenges. The first challenge which it faces is that there are gaps in formal education. Okay. In schools, we see that there are long size classes. There's a lack of personal attention and shortage of trained and subject-oriented teachers. Yes. And on the top of it, we see that the teaching methodology, outdated teaching methodology, the teaching pedagogy, it is teacher-centric. It's not student-centric. Okay. It's not education environmental friendly. That's why if we look at these problems and then there is a curriculum pressure. Syllabus khatam karna hai. ठीक है. हाँ. Teachers always they say that we have to just complete our syllabus. बिल्कुल. So there's a curriculum pressure which restricts teachers to provide personalized guidance to the students. Okay. So under these circumstances, when we look at these problems on one side and on the other side we see the coaching institutions, they fill up these gaps. Okay. जो मतलब हम formal education में जो gaps हम देखते हैं, these gaps are being filled by these private education institutions because they provide focused examination oriented
teaching Mhm. to the students. Mhm. And again, there's a pressure Mhm. of examination Exactly. to the students. Mhm. Even if the students, they are bright, they are Yes. above average, सही बात है. but there's a pressure of examination. Mhm. So they want Mhm. that the competitive exams like NEET, Mhm. like JEE, Mhm. or we Competitive talk level about examinations. civil service Mhm. examinations. जी. And then if I talk about my subject, commerce and management, Mhm. there are entrance tests for CACPT, Okay. CMAT, Mhm. CAT, Mhm. GMAT. Okay. So these are competitive exams which cannot be dealt by the schools and colleges, because the structure of the college Mhm. or school Mhm. is not such Mhm. that they can provide this type of coaching to the students. Okay. So we think that there is a need of Mhm. private coaching. Mhm. Otherwise, our students, they will not come up successful Mhm. if they will rely on their classroom teaching in the schools. Mhm. So they have to see the parents' aspirations. Mhm. They see that their wards, Mhm. that they should do something, Mhm. because education, it's a pathway. It is a pathway to go upward Mhm. mobility. Yes. Education is everything. Yes, exactly. So when we see the aspirations of parents, Mhm. they feel themselves comfortable Mhm. when they see that their wards are getting Mhm. enrolled जी. in these private Mhm. educational institutions. Mhm. Because these private educational institutions, they employ Mhm. generally Mhm. subject-oriented teachers Yes. who just use problem-solving techniques, because they know shortcuts. Yes. They know practice drills, Mhm. how we have to teach how we have to prepare the student for a particular Mhm. competitive examination. सही बात. Because in these competitive examinations, you have a comprehensive Mhm. and specialized preparation, Mhm. which is not possible in our government schools. Yes, in our, exactly. So that's why the parents are also, despite of their financial strains, Yes. they want to admit students Students in. in these private institutions. सही बात है. And then again, when we talk about quality learning, Mhm. because students in these coaching institutions, they get exposed to model test papers, Yes. test series, Mhm. previous year question papers, Mhm. which is not possible Mhm. in schools, Mhm. because they don't provide this facility systematically to the students. Mhm. So that's why Mhm. ये समझ लीजिए हमारी मजबूरी है. जी. तो हमें तो मतलब we have to seek private coaching for our students. Yes. And we see that the families and parents, they view Mhm. that education is everything. Mhm. So they don't want to compromise. बोलते नहीं, हमें बच्चों को मतलब प्राइवेट सेंटर्स में उनको हमें एनरोल करना ही करना है. क्योंकि if we look at the cultural, social and political factors of Kashmir, जी. there are long academic disruptions. Yes, there have been. Yes. Long academic disruptions. Mhm. And at a time, it seems that private educational institutions, it's a reliable alternative for continuous learning. Otherwise, our students, they will lag behind. जी. They will not be able to complete their course curriculum in their respective schools. Yes. ओके सर, हमने देखा होगा नॉट जस्ट जो सिटी में बच्चे रहते हैं, दे ऑफर ट्यूशंस, आउटस्कर्ट से भी लोग आते हैं, ये एक गैप क्रिएट करता है
दैट इज मतलब क्वाइट एविडेंट दीज डेज। आप देखेंगे दूर दराज गांव से बच्चे आते हैं पढ़ने, एंड जो फीस होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको नहीं लगता है ये गैप क्रिएट करता है जो फाइनेंशियली सफिशिएंट है उनके लिए, एंड जो फाइनेंशियली सफिशिएंट नहीं है उनके लिए भी? But what is the way forward? If it's a very pertinent question, but for that we need to strengthen our school system. Okay. Because if we look at the new education policy, it's a very important document, and it contains everything. But when we see its implementation part, that schools and colleges have not been structured the way the new education policy has come up. Okay. So this is a necessary evil. We can say that the parents, they have to seek the admission of their wards in private institutions, yes, just to cope up with what's going on nowadays. If you look at the present scenario, we talk about globalization, we talk about privatization, we talk about liberalization. So and then there is a information technology intervention. सही बात है. And we are not conversant with artificial intelligence. We are not conversant with machine learning, robotics. So our students, they will become irrelevant. If we don't just, keep up with it, yes. if we will not just take measures, and if we will keep them confined with their schools, so they will lag behind. And you see that in corporate sector, I will talk about my subject. Students, they are thrown out of the jobs because they are becoming irrelevant because of the digital technology. Exactly. So it's taking away jobs. We have to see how we can keep our children, our wards, that conversant with the latest technology. So for that, this is imperative that coaching centers, and there is a need of coaching centers at this point of time. महाजन साहब, कुछ लोगों को मिसकंसेप्शंस भी होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जैसे हम देखते हैं कुछ लोकल एरियाज है, जैसे राजबाग है, परेपोरा है, वहाँ एक वो ट्यूशंस का हब बन गया है। बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैव दिस कंसेप्शन कि वहाँ क्या करने जाएंगे, अच्छी दरबदरी गसान बोलते हैं ना। डू यू हैव समथिंग टू से अबाउट दैट? बिकॉज आज आप देखिए, आई डोंट फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन अ स्कूल एंड अ ट्यूशन टुडे। अगर आप फॉर इंस्टेंस जो साइंस स्ट्रीम की ट्यूशंस हैं, आप देखिए उसमें भी एक ही क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड होते हैं। सो आप कैसे दे पाओगे, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट कैपेसिटी होती है, हर कोई मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होती है सब बच्चों की एक जैसी। सो हाउ विल यू गिव द सेम अटेंशन टू ईच वन ऑफ द स्टूडेंट? तो काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं सामने। That's true. Now there's a mushroom growth of these coaching centers. But students and parents, they are supposed to choose the right institution for their right education. And how do we do that? Otherwise we see there are institutions which impart quality education to the students. But at the same time, now it is also the responsibility of the parents. Because in education there are so many stakeholders. So we should not just leave it to the teachers only. Yes. So parents, you they cannot. have their role. Yes. But आजकल हम देखते हैं, because I have been teaching for the past 40 years, and I also see the change. Students, they are not that serious. अभी मैं जब 10 साल पहले पढ़ाता था, तो बच्चे जब आते थे तो वो इतने सीरियस होते थे, उनके पास नोटबुक होती थी, उनके पास पेन होता था। मगर आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स, दे कम कैजुअली। जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा आपके पास ये नोटबुक नहीं है, तो बोलते सर आप पढ़ाइए ना, योर जॉब इज जस्ट टू टीच। Oh God. You see the difference. So they talk back now. So we can take the photograph of, मैं मतलब बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, तो वो बच्चे बोलते हैं कि सर we can take the photograph of the board. मैंने कहा मैंने तो अभी 3-4 बार तो इसको इरेज भी किया, तो मगर आपने तो कॉपी नहीं किया। तो थोड़ा सा माइंड सेट जो है कि मतलब उसमें पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है। क्योंकि हम बोलते हैं कि एजुकेशन में 3 एलिमेंट्स बहुत जरूरी है, knowledge, and then you have skills, and then you have value system. Yes.
सो वैल्यू, जब हम System. वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, जी ठीक है, एजुकेशन में हमें तो वी हैव टू जस्ट इम्पार्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, उनके स्किल सेट्स, क्योंकि अदरवाइज दे विल बिकम इरेलेवेंट। यस मैंने आपको for बताया कि sure. जॉब मार्केट हैज बिकम हाईली वोलेटाइल। Yes, वहां पे you are मतलब judged on your skills. Yes. क्योंकि हम क्या करते हैं कि वी जस्ट टीच स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एंड दे आर कन्फाइंड टू क्लासरूम टीचिंग। Mhm. मतलब दे आर डिवाइड ऑफ, वी हैव टू सी द जॉब मार्केट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब मार्केट, जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, Requirement क्या है? इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, Mhm. एंड वी हैव टू Train students see accordingly. that we have to train our students according to the job market, according to the requirements of the industry. Yes. तो उसके लिए मतलब बहुत सारे मीडियम्स हैं जो इन्होंने मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो रखे हैं। जी हम बोलते हैं वी हैव टू रोप Mhm. professionals, we have to rope corporates, we have to take the students to different industries Mhm. or in order to just give them the corporate Mhm. exposure, मगर जी वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दैट इज मिसिंग इन आवर Mhm. एजुकेशन। Mhm. हमारा मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है वही जस्ट क्लासरूम टीचिंग हम पढ़ाते हैं बच्चों को, Mhm. मतलब जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है, जी दैट इज समवेयर Mhm. मिसिंग। Yes. मतलब उससे क्या है कि देयर इज अ डिवाइड, देयर इज अ गैप between the education and the job market. Yes. That's why our students, they become irrelevant. Mhm. They come out from the colleges, they come out from, but at the end they have to seek the job, they have Yes. to face the competitive Yes. examination. Yes. मगर फिर जब हम देखते हैं कि उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा है, कॉलेज में उन्होंने क्या पढ़ा है, Mhm. that's not required in the Mhm. job market. That's why Mhm. तो हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना है Mhm. कि मतलब हमें सही अपने बात। एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करना। द वे फॉरवर्ड इज दैट कि मतलब हमें मतलब देखना चाहिए कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, Mhm. वो जो डॉक्यूमेंट है Mhm. उसको हमें अच्छे से परयूज करना है Mhm. और फिर उसको अच्छे से हमें इम्प्लीमेंट करना है। Mhm. तो अगर उस चीज को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए तो तब जाके मतलब हम देखेंगे कि मतलब जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, Mhm. they will become Mhm. they will become good educational institutions for imparting good quality education to the students. Okay. नाज़रीन, यहाँ पे हमारा टॉकिंग टॉक तो चलता रहेगा, बट लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सब नाज़रीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। यहाँ पढ़ेंगे अपनी टॉक्स की तरफ। महाजन साहब, क्योंकि आपने बात की कि बच्चे आजकल इर्रेलेवेंट नहीं रहना चाहिए, राइट? तो मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं बचपन से लेकर अभी तक, लाइक स्कूल में हमने क्या पढ़ा है, ABC पढ़ा है, ठीक है, फिर मैथ्स की बात करें तो अलजेब्रा पढ़ा है। मतलब ग्रोइंग अप जो मैं आज विटनेस कर रही हूँ, जो मेरा स्किल है, लाइक आई एम डूइंग जर्नलिज्म, अगर ऐसा होता कि मुझे इसमें वो कैपेबिलिटीज, वो स्किल्स मेरी पहले ही शार्पन की गई होती, आई गेस आज उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होता अगर स्किल्स पे फोकस किया होता। हम अक्सर ये देखते हैं स्कूल्स में सिलेबस के हिसाब से चलाया जाता है, बट जो एक स्टूडेंट का अपना स्किल होता है, उसका अपना पैशन होता है, उस पर फोकस नहीं जाता है। स्पोर्ट्स में हम ज़्यादातर देखते हैं, बट यूजुअल लेवल पे ऐसा नहीं होता है। सो डू यू हैव समथिंग टू से अबाउट दैट? मतलब ऐसा होना चाहिए स्कूल्स में? देखिए बेसिकली मतलब स्कूल्स में एक फैसिलिटी होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम। यस, और वो पहले से होनी चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब इफ यू आर देयर तो हमें देखना है कि आपका एप्टीट्यूड किस में है। यहाँ पे ये है कि मतलब बाप को डॉक्टर बनना था मगर वो बना नहीं, अब वो अपने बच्चे को बोल रहा है तुम बनो, आप डॉक्टर बनो। एग्जैक्टली। सो ये मतलब अच्छी बात नहीं है। यस, तो यहाँ बहुत होता है, यहाँ पे यही होता है, थोपा जाता है। वही फोर्स our words that you have मैं नहीं कर पाया तो आप कर लो, you have to opt for this discipline. I have been through this. तो इसमें इसी से मतलब यहाँ पे मतलब जो है हम देखते हैं कि जो ये मिसमैच है ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में ये स्किल ओरिएंटेशन
हालांकि मतलब it has been given a lot of focus in new education policy. मगर but our colleges and schools, they have not been able to create the infrastructure for this kind of vocational training. Maybe it's lacking in universities, even in universities and colleges and schools. Okay. मतलब ये होना चाहिए. मतलब हमें ये देखना है कि बच्चों का रुझान किसमें है, जी. क्योंकि मतलब अभी इंटरेस्ट किसमें है बेसिकली. अभी आज हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब देयर इज अ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट. यस. मगर मैं आई हैव बीन टेलिंग इट इनवेरिएबली, मतलब इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी. यस. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. The problem is employability. क्योंकि Yes. मतलब हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है जो स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए. सही बात. तो वो हमारे पास नहीं है. उसका रीजन ये है कि मतलब वी हैव टू, मतलब वो बोलते हैं ना, वो कैच द स्टूडेंट्स यंग. मतलब जब वो स्कूल्स में ही कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स होने चाहिए. मतलब हमें बच्चे का एप्टीट्यूड देखना है इन द स्कूल. मतलब हम क्या करते हैं कि मतलब अप टू 11th स्टूडेंट ऐसे, मतलब फिर मतलब जब 11th में पहुंचता है फिर उसको हम बोलते हैं कि डैट यू हैव टू ऑप्ट फॉर द मेडिकल स्ट्रीम और यू हैव टू ऑप्ट फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम. मतलब बच्चे को ये अपना एप्टीट्यूड होना चाहिए. बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने कॉमर्स लिया, मैं मोस्टली आई टेल माय स्टूडेंट्स, सपोज यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, what do you want to become, why you have chosen this subject, आगे जाना कहाँ, आगे कहाँ जाना है. तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता. वो बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने मतलब ये सब लिया तो मैंने भी लिया. मुझे मेरी खाली मतलब कॉमर्स, मतलब बहुत सारे मतलब बच्चे आते हैं कि मेरी खाली आपके पास उन्होंने पढ़ा है, तो मतलब मैं भी आ गया. तो मैंने भी सोचा कि मैं महाजन सर के पास ही पढ़ूंगा. तो ये है. इस चीज को हमें देखना है कि वही हमें मतलब कि कॉलेजेस में ऐसी मतलब वी हैव टू जस्ट स्टार्ट वो जिसको बोलते हैं ना अवेयरनेस प्रोग्राम्स. एजुकेशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है. मतलब पेरेंट का एक रोल है जी, टीचर का भी एक रोल है और सोसाइटी का भी एक रोल बनता है. सही बात है कि सोसाइटी को भी ये देखना है कि मतलब ये तो हमारे बच्चे हैं. तो मतलब हम क्या करते हैं कि वी आर अनकंसर्न. मतलब हम बोलते हैं कि मुझे क्या है, व्हाट ही इज डूइंग, वो सड़क पे कुछ कर रहा है. पहले जमाने में जब हम पढ़ते थे तब अगर कोई सड़क पे कोई बुजुर्ग होता था वो रोकता था कि मतलब बेटा ये नहीं करते हैं. तो एक वो वैल्यू सिस्टम मतलब दिस इज फास्ट डिसअपियरिंग. very much. The violence has come. The violence has come in the educational institutions. या अभी हम देखते हैं कि there is a drug menace. A lot. This has come in our educational institutions. सही बात. और टेक्नोलॉजी, मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि मतलब there is a divide of this what you call मतलब टेक्नोलॉजी तो मतलब ये तो ठीक ही है. मतलब हम बोलते हैं ना कि it's a double-edged weapon. It can be used for a good purpose and it can be used for a bad purpose as well. तो उसके लिए मतलब हमें मतलब we need to counsel our स्टूडेंट्स. मतलब पेरेंट्स का एक रोल बनता है जी. पहले से मतलब अपने बच्चों को समझे, क्योंकि आप देखें आज छोटे बच्चे भी, उनके पास भी मोबाइल है. दे यूज इंटरनेट. मतलब इंटरनेट किस हद तक हमें यूज करना है तो उस पर एक नजर होनी चाहिए. लिमिटेशन तो पेरेंट्स को ये देखना है अगर ये इंटरनेट यूज करता है तो ये वहाँ पे क्या देखता है, कंटेंट क्या है. तो ये रोल है. इसलिए मैंने बताया कि हमारे स्टेक होल्डर से सोसाइटी का भी रोल बनता है, ये टीचर्स का रोल भी बनता है और ये पेरेंट्स का भी रोल बनता है. तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ इस चीज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. अदरवाइज वी आर गोइंग बैक टू वर्स. मतलब अभी जो एजुकेशनल स्टूडेंट्स की हालत है हम देखते हैं. मैंने आपको बताया कि बच्चे मतलब वो सीरियसली मतलब वो नहीं लेते हैं. तो उसमें मतलब अब गवर्नमेंट का भी एक रोल है. मतलब देयर शुड बी, जैसे आपने बताया कि कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं करते हैं, दे कैन नॉट सीक, सब नहीं कर पाते प्राइवेट ट्यूशन, दे कैन नॉट सीक. सो गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू कम अप एंड दे मस्ट स्टार्ट कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स. मतलब देयर मस्ट बी रेमेडियल. अब देखिए मतलब बच्चे क्लास में वीक भी होते हैं बच्चे, उनके लिए तो मतलब देयर मस्ट बी रेमेडियल क्लासेस. सो गवर्नमेंट मस्ट स्टार्ट. तो ऐसे मतलब रेमेडियल क्लासेस हमें शुरू करनी चाहिए कि मतलब ऐसे बच्चों के लिए. मतलब क्योंकि बिकॉज इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट कोचिंग ये हमारे लिए एसेंशियल है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ रेमेडियल सपोर्ट.
जो मैं स्कूल में नहीं सीखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे उसको प्राइवेट ट्यूशन में मुझे सीखना है. सो इट एक्ट्स एज अ रेमेडियल सपोर्ट फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग, या जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लर्निंग. और मैंने मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब दिस वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जब एजुकेशन की बात हम करते हैं तो स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ मैथमेटिक्स. Yes, me too. मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स इज अ कोर सब्जेक्ट. Yes. मतलब अगर आपको जर्नलिज्म भी करना है तो मगर बट यू मस्ट बी गुड एट मैथमेटिक्स. Oh God, you're scaring me. आपको अगर कोई और मतलब किसी और फील्ड में जाना है, मगर बट यू मस्ट बी strong in mathematics. But why? Mathematics is because it's an analytical subject. If you are good at mathematics, you will be good at everything. आप हर एस्पेक्ट में आप अच्छा होंगे. मगर उसके तरफ हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए. जब मैं मतलब माय डॉटर इज स्टडिंग इन अमेरिका. Okay, great. In University of Kansas. She told me when she went there, she told me that for 6 months they have given us the only mathematics training. There were four courses for mathematics. 4 courses. She is doing something different. She is pursuing clinical psychology. Oh, okay. But she told me that it was necessary for us that you have to study the American history. Okay. American economic system. Okay. And then mathematics. मगर आप मुझे बताइए यहाँ पे हम क्या करते हैं. So ये चीजें अभी हम we are far behind. Away. Yes. तो मतलब हमें देखना, मैंने आपको बताया कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, मगर उसको हमने मतलब वो कहते हैं ना वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी ग्राउंड लेवल पे. 25% भी ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं है. अगर उसको मतलब हम देखेंगे अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो देयर विल बी चेंजेस इन आवर एजुकेशन सिस्टम. ओके. तो मगर हम देख रहे हैं कि मतलब वहां पर भी कुछ नहीं हो रहा है. अजन साहब, इससे पहले कि मैं शुमारा कंक्लूड करूं, आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है, बहुत ट्यूशन्स है जो कि अनरेगुलेटेड है. जो आपका कोचिंग सेंटर है, सो हाउ डू यू मेक श्योर कि वो इफेक्टिव है और वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? देखिए, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि you have to see that अगर I am running this management and commerce education institution, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जो मेरी टीचिंग फैकल्टी है, एक तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जी, क्योंकि जो आप बोलते हैं कि मतलब देयर आर सर्टेन एजुकेशन व्हिच आर नॉट रेगुलेटेड. यस. तो उसमें मतलब यही है कि मतलब हमें देखना है कि मतलब जो फैसिलिटीज एक कोचिंग सेंटर में होनी चाहिए वो है कि नहीं. वो है कि नहीं. मतलब हमें ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ तो ये मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन है. मुझे देखना है कि क्या बेसिक जो एमिनिटीज हो, जो बेसिक फैसिलिटीज है स्टूडेंट्स के लिए, वेदर दीज फैसिलिटीज आर देयर और नॉट. क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा कि शडू में मतलब बच्चों को पढ़ाते थे, उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं होती थी, कोई लाइटिंग फैसिलिटीज नहीं होती थी. तो ये चीज हमें खुद देखना है कि जो मतलब कोचिंग सेंटर के जो ओनर्स है, मतलब फ्रॉम दिस मीडियम में आई वांट टू जस्ट कन्वे देम कि मतलब जो भी मतलब कोचिंग सेंटर स्टार्ट करेगा उसको ये देखना है कि दैट माय कोचिंग सेंटर मस्ट बी रजिस्टर्ड. तो एक रजिस्टर होना चाहिए और फिर उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज है, we need to provide those basic facilities to our students, and then we must not compromise on quality of teaching. मतलब जो quality of teaching है तो उस पे हमें कोई compromise नहीं करना है. हमें we must employ good teachers, we must employ trained and qualified teachers. तब जाके मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेपरेट है, मतलब जो हम बोल रहे हैं कि जो हमें स्कूल्स में नहीं मिलता वो हमें प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मगर वो तब मिलेगा when all these things will be taken care of. Otherwise वहां पर भी फिर वही प्रॉब्लम है. और आजकल हम देख रहे हैं कि there is a mushroom growth of these private coaching centers. तो जहाँ पे हम देखते हैं कि तो बेसिक फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, मतलब वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं है. तो और मतलब कोचिंग सेंटर्स हम देखते हैं कि जो इवन क्वालिफाइड नहीं है. मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब जो कोचिंग सेंटर जो चलाएगा ना, पहले मतलब वो ही मस्ट बी मतलब वो खुद अच्छा
अच्छा क्वालिफाइड होना चाहिए। Yes. और अगर वो इफ ही इज एसोसिएटेड विद एजुकेशन, अब इस सेक्टर में अब क्या है कि कोचिंग सेंटर अब हर कोई चलाता है, मतलब वो ही इज नॉट एसोसिएटेड विद एजुकेशन, मगर उसने भी अब कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है, तो इससे थोड़ा इसमें मतलब वो कहते हैं कि इरेगुलरिटीज हो गई है, और जो मतलब इसका स्पिरिट था वो पूरा नहीं हो रहा है। ओके महाजन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस मौजू पे हमसे बात की। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉक एंड टॉक। आपने सुना ही होगा, महाजन साहब ने बहुत कीमती, बहुत ज़रूरी बातें बताएं हमें, और ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस या टीचर्स का ही नहीं काम है, बट पेरेंट्स का और एक सोसाइटी का एज इन होल फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चीज़ में, एजुकेशन में अपना रोल अदा करें, और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो अपनी एजुकेशन को सीरियसली लें, क्योंकि आज हम सिर्फ ड्रग मिनिस से नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयबिलिटी से भी जूझ रहे हैं, और नॉट जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बट लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी से भी। सो कीप अ वॉच, वेयर आर यू लीडिंग टू। ये था आज का टॉक एंड टॉक। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।